Good morning, students. Today we shall learn about curves. The pictures that are result of our doodling are called curves. The picture that are result of our doodling are called curves. It means if I draw any figure without lifting my pen, if I draw any figure without lifting my pen, मैं पेन को बिना उठाए अगर एक फिगर बनाऊं तो ये कर्व्स कहलाएंगे. Okay, here you have some example. These are curves. Okay, now second, simple curves. If a curve does not cross itself, if a curve does not cross itself, then it is called a simple curve. Here you can see that first curve does not intersect itself, second curve does not intersect itself, so they are simple curve, but third one cross itself, intersect itself, so this is not a simple curve. Okay, now okay, if I draw any figure just like n, this is the curve, so this point become starting point, this point become ending point. If starting point does not meet to the ending point, then this is simple open curve. If starting point meet to the ending point like if starting point meet to the ending point, then it is a closed curve. Okay, so now this is an example of open curve and this is an example of closed curve. Next one, polygons. A figure is a polygon if it is a simple closed figure made up entirely of line segment. A figure is a polygon if it is simple. Simple means अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि क्या ना हो, क्रॉस इटसेल्फ को कर्व अपने आप को ही क्रॉस ना करे, then it will be a simple curve. If a curve does not cross itself, then it is called a simple curve. Okay, now polygons. A figure is a polygon if it is a simple closed figure. सिंपल होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, एंड मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट, और एंटायरली लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए. पूरा कैसे बना होना चाहिए? सिर्फ लाइन सेगमेंट का यूज करके बनना चाहिए. ओके, सो इट विल बी अ पॉलीगॉन. You already have the knowledge of triangle, square, rectangle. These are the example of polygons. Okay, now some basic definition. Sides. The line segment forming a polygon are called its sides. ये आप पॉलीगॉन देख रहे हैं, ये जो इसकी साइड्स, ये जो इस लाइन सेगमेंट, जिन लाइन सेगमेंट से ये मिलके बना है, दीज आर साइड्स. ओके, ये जो लाइन सेगमेंट से ये मिलके बना है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? साइड कहते हैं. ओके, नेक्स्ट, वर्टेक्स. द मीटिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ साइड is called the vertex. The meeting point of a pair of side is called its vertex. दो साइड जहाँ पे मिलती हैं, like this side and this side, कहाँ पे मीट कर रही है? इस पॉइंट पे मीट कर रही है ना, देन दिस इज वर्टेक्स. ओके, जहाँ पे दो साइड मीट करती हैं वो क्या होता है? हमारा वर्टेक्स होता है. नाउ adjacent sides. Any two sides with a common endpoint are called the adjacent sides of a polygon. So
this side and this side meet at a point, they have a common point now, so these sides are said to be adjacent side. Okay, next one is diagonal. A line segment which join two non-adjacent vertices is called diagonal of the polygon. A line segment which join two non-adjacent vertices is called diagonal of the polygon. अच्छा, इसको समझते हैं हम लोग. ये एक हमारे पास वर्टिक्स है. नॉन एडजेसेंट वर्टिक्स का मतलब हो गया जो उसके पास में ना हो. ये वाला जो वर्टिक्स है हमारा, ये इसका नियरेस्ट वर्टिक्स है, तो ये एडजेसेंट वर्टिक्स हो जाएगा. इन डायगोनल वी नीड नॉन एडजेसेंट वर्टिक्स, सो दैट नॉन एडजेसेंट वर्टिक्स विल बी दिस वन, ये हो जाएगा. और एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो इन दो वर्टिक्स को मिलाता है, जो दो नॉन एडजेसेंट वर्टिक्स को मिलाता है, दैट इज डायगोनल. इफ वी कंसीडर दिस वर्टिक्स, तो क्या होगा कि दिस वन नियरेस्ट वर्टिक्स, दिस वन इज नियरेस्ट वर्टिक्स, इट्स मीन्स ये एडजेसेंट वर्टिक्स हो गए हमारे पास. सो दिस लाइन इज डायगोनल. ओके, these are the non-adjacent vertex, these are the non-adjacent vertex, and the line segment joining these vertex is known as diagonal. I hope you understand now. Now we start exercise 4.2. Question number 1 is, classify the following curves as open or closed. To be a open curve, starting point does not meet to the ending point. Starting point को ending point से नहीं मिलना चाहिए. इन्होंने यहाँ पे Z बना दिया है and they are asking that Z is a open curve or a closed curve. So here you can see that starting point does not meet to the ending point, so it is a open curve. Okay, B closed curve, C open curve, D closed curve, and C you can see that closed curve. This is E, oh sorry, this is E is closed curve. Okay, you can see that if you start drawing this, then you will draw it like this. Okay, the starting point मिल जाएगा हमारा, starting point ending point से मिल गया, तो it will become a closed curve. Okay, now question number 2, draw rough diagrams to illustrate the following. You have to draw an open curve, and a closed curve. So open curve के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, जो starting point है वो ending point से नहीं मिलना चाहिए. So you can draw anything whatever you want. अगर आपके नेम का लेटर N है तो आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं. इसका स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट से नहीं मिल रहा है, M को ड्रॉ कर सकते हैं आप. ओके, क्लोज्ड कर्व जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट से मिल रहा हो, जस्ट लाइक अ सर्किल. क्या होता है इसमें, एंडिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से मिल जाता है हमारा, तो सर्किल इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोज्ड कर्व. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ एनी पॉलीगॉन. हम लोग को एक पॉलीगॉन ड्रॉ करना है. क्या था पॉलीगॉन, इट शुड बी सिंपल, दिस कर्व शुड बी सिंपल, क्लोज्ड एंड एंटायरली मेड ऑफ लाइन सेगमेंट. कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए. सिंपल का मतलब क्या था, अपने आप को क्रॉस ना करे. सेकेंड थिंग इज क्लोज होना चाहिए था. थर्ड थिंग इज एंटायरली मेड ऑफ लाइन सेगमेंट. यही तो पढ़ा था हम लोगों ने. अ फिगर इज अ पॉलीगॉन इफ इट इज सिंपल, क्लोज्ड एंड एंटायरली मेड ऑफ लाइन सेगमेंट. अगर ये सिंपल होगा, क्लोज्ड होगा और पूरा का पूरा लाइन सेगमेंट से बना होगा. सो यू कैन ड्रॉ एनी फिगर लाइक दैट.
You can also draw a simple triangle or a simple quadrilateral, and also you have to shade its interior. You can shade its interior by your favorite color. Okay, next, consider the given figure and answer the question. You have one figure here. आपको एक फिगर दिया है. They are asking, is it a curve? Obviously, is it a curve? We can draw this without lifting our pen, and this is the result of our doodling. So this is a curve. Now is it closed? क्या ये closed है? Obviously closed है. Starting point ending point से मिल रहा है. Okay. Question number 5. Illustrate, if possible, each one of the following with a rough diagram. Part A, a closed curve that is not a polygon. अच्छा, फिर से रिवाइज करते हैं. पॉलीगॉन होने के लिए क्या होना चाहिए? सिंपल. कर्व कैसा होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए. सिंपल का मतलब क्या? जो कर्व है ना वो अपने आप को ही इंटरसेक्ट ना करे. सेकंड थिंग इज क्लोज्ड होना चाहिए. एंड द थर्ड इज लाइन सेगमेंट, एंटायरली मेड ऑफ लाइन सेगमेंट. पूरा का पूरा कैसे बनाना चाहिए? लाइन सेगमेंट से बना होता है. अगर इन तीनों में से किसी भी एक को कर्व फॉलो नहीं करता है, अगर इन तीनों में से किसी एक को भी कर्व फॉलो नहीं करेगा तो वो पॉलीगॉन नहीं होगा. ठीक है, तो पॉलीगॉन होने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? सिंपल होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, लाइन सेगमेंट होना चाहिए. दे आर सेइंग दैट वी हैव टू ड्रॉ अ क्लोज्ड कर्व. एक क्लोज्ड कर्व तो बनाना है लेकिन वो पॉलीगॉन नहीं होना चाहिए. तो हम लोग क्या कर रहे हैं? लाइन सेगमेंट को भूल जा रहे हैं. एक ऐसा फिगर बना दे रहे हैं जो सिंपल तो हो, क्लोज तो हो, लेकिन लाइन सेगमेंट से ना बना हो. सो यू हैव वन एग्जाम्पल, सर्किल. आप कुछ भी और बना सकते हैं. ओके, सर्किल हमारा क्लोज्ड है लेकिन पॉलीगॉन नहीं है क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ है. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, एन ओपन कर्व मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट. एन ओपन कर्व, हम लोग को एक ओपन कर्व बनाना है जो कि पूरी तरीके से लाइन सेगमेंट से बना हो. तो आप क्या क्या बना सकते हो? एम बना सकते हो. लाइन सेगमेंट से बना है और ओपन भी है क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, एंडिंग पॉइंट यहाँ पे है, जो एक दूसरे से बीट नहीं कर रहे हैं. एन बना सकते हो आप. ओके, सी बना सकते हो आप. अदरवाइज वट एवर आपके मन में जो भी फिगर आया आप वो बना सकते हैं. मैंने यहाँ पे एक डिजाइन इस तरीके से बना दी है. एंड थर्ड इज अ पॉलीगॉन विथ टू साइड्स. आपको दो साइड का यूज करके पॉलीगॉन बनाता है. दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग. अभी आपको पास क्या है? दो साइड है. यू हैव, लेट अस सपोज यू हैव टू मैच स्टिक. ओके, you have two matchsticks. By using these two matchsticks, you have to draw any polygon. आपको इन matchstick का यूज करके एक polygon बनाना है. और polygon होने के लिए क्या होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, एंड entirely made of line segment. सिंपल कर्व होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए. तो क्या आप दो मैचस्टिक से एक ऐसा कर्व बना पाएंगे जो क्लोज्ड है? नहीं ना, आप नहीं बना पाएंगे. दो मैचस्टिक का यूज करके आप एक क्लोज्ड कर्व नहीं बना पाएंगे. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. सो यू विल राइट नॉट पॉसिबल. थैंक यू.